10 سے زائد طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ طلبہ کے ایک گروپ کا چاکیواڑہ تھانے کے باہر احتجاج، جس پر پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ جی ہاں، لیاری جنرل اسپتال میں گروپوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ 10 سے زائد طلبہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ طلبہ کے ایک گروپ کا چاکیواڑہ تھانہ کے باہر احتجاج جاری، جس پر پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کیا۔ تفصیلات جانیں گے فرحان خان، جو کہ اس وقت وہیں پر موجود ہے۔ فرحان، بتائیے گا اس وقت آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ یہ دو کون سے گروپ ہیں؟ جی بالکل، ایک جو وہ طلبہ کی جانب سے گروپ بتایا جا رہا ہے، جبکہ جو ہے وہ دوسرا اسپتال انتظامیہ کی جانب سے گروپ بتایا جا رہا ہے۔ دونوں کے جو وہ اپنے موقف سامنے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم لیاری چاکیواڑہ پولیس اسٹیشن کے باہر موجود ہے، جہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل طلبہ کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا تھا۔ یہ وہی طلبہ ہیں جنہوں نے اب سے کچھ دیر قبل لیاری کالج اسپتال کے باہر بھی احتجاج کیا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، جس میں طلبہ متعدد سے زائد ایسے طلبہ ہیں جو کہ زخمی ہوئے تھے۔ 10 سے زائد طلبہ کی بتائی جا رہی ہے جو زخمی ہوئے ہیں۔ 9 طلبہ کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جو کہ جن کی کنڈیشن سیریس تھی، جبکہ کچھ طلبہ کے جو وہ کھنجر لگنے کا بھی جو وہ سامنے واقعہ آیا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے اسپتال انتظامیہ کی، تو اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جو وہ الگ موقف دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو طلبہ نے احتجاج حملہ آور ہوئے، ہنگامہ آرائی کی ہے اسپتال کے اوپر، ان کے خلاف جو وہ جعلی ڈگریاں سامنے آئی تھی، جس پر اسپتال انتظامیہ نے جو وہ ان کو بتایا، تو وہ پچھلے کچھ روز سے بھی جو اسپتال بار بار آ رہے تھے اور ہراساں کرنے کی جو وہ اسپتال انتظامیہ کو اور اسٹاف کو کوشش کر رہے تھے۔ جبکہ آج وہ سابق ایم پی اے، سیاسی جماعت کے سابق ایم پی اے سید عبدالرشید کے ہمراہ جو وہ آج اسپتال صبح سویرے پہنچے ہیں۔ صبح 11 بجے کے قریب کا وقت بتایا جاتا ہے اسپتال انتظامیہ کی جانب کے، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھی جو وہ طلبہ تھے، تقریباً 40 سے زائد طلبہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، جو کہ اسپتال کے دروازے کے اندر زبردستی داخل ہونے کی کوشش بھی کری، جس کی سی ٹی وی فوٹیج اور جو وہ فوٹیج 321 نے بھی حاصل کی ہے۔ اس کے اندر دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ 40 سے زائد طلبہ ہے جو کہ زبردستی دروازے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ سابق جو چیئرمین ہیں شبانہ بلوچ، جن کی تعیناتی جو وہ دوبارہ لیاری نرسنگ ہاسپٹل میں جو وہ کی گئی ہے، ان کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جبکہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ طلبہ ہیں جن کی ڈگریاں جو وہ جعلی نکلی ہیں، جس پر اسپتال انتظامیہ نے ان کو بتایا کہ آپ کی جو وہ ڈگریوں کی جو ویریفیکیشن صحیح نہیں آئی ہے، جس پہ آپ کو جو وہ طلبہ کی جو نکالنے کی اعلان کیا گیا، جس کے اوپر طلبہ نے سابق سیاسی جماعت کے جو ایم پی اے ہیں سید عبدالرشید، ان کے ہمراہ اسپتال کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ دونوں طرف سے جو وہ اپنا اپنا موقف دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب طلبہ اندر گھسے تو انہوں نے گارڈ کو بھی جو شدید زخمی کیا ہے، جبکہ متعدد زائد جو اسپتال کے اندر موجود مریض تھے ان کو بھی زخمی کیا گیا، جس میں جو اسپتال کے اندر خوف و ہراس بھی پھیلایا۔ پولیس نے فوراً موقع پر پہنچ کے جو وہ وہاں سے طلبہ کو منتشر کیا، جس کے بعد طلبہ وہاں سے یہاں چاکیواڑہ پولیس اسٹیشن پہنچے، جہاں پہ سابق ایم پی اے سیاسی جماعت کے سابق ایم پی اے عبدالرشید کو لایا گیا تھا۔ ان کے اوپر یہاں پہ تمام طلبہ نے جو وہ ہنگامہ آرائی بھی کری، نعرے بازی بھی کری شدید، جو وہ چیئرمین شبانہ بلوچ کے خلاف بھی جو وہ نعرے بازی کری۔ ان مظاہرین کا یہی کہنا تھا کہ شبانہ بلوچ کو جو وہ دوبارہ تعینات کیا گیا ہے، وہ ایک طرف جو وہ ملازم ہے، جس پر ان کو جو وہ فوراً سے جو وہ برطرف کیا جائے۔ جبکہ یہاں پہ جب ہنگامہ آرائی کے بعد جب پولیس نے طلبہ کو دوبارہ منتشر کرنے کی کوشش کی اور گرفتاریاں بھی کری، ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اب سے کچھ دیر قبل پولیس نے تمام طلبہ جو یہاں پہ نعرے بازی کر رہے تھے ان کی جو وہ گرفتاریاں کی گئی، ان کو پولیس وین کے اندر ڈال کے جو وہ نامعلوم مقام پر جو وہ منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اب سے کچھ دیر قبل یہاں سے سابق ایم پی عبدالرشید بھی جو وہ نکلتے ہوئے ہمیں دیکھے ہیں اور وہ اپنی گاڑی کے اندر یہاں سے جو وہ سوار ہوئے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو وہ اپنے موقف سامنے آ رہا ہے، اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اپنا موقف دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جبکہ جو طلبہ ہیں جن کے اوپر جو وہ حملہ ہوا ہے، جس میں متعدد طلبہ زخمی ہوئے ہیں، سابق ایم پی اے سے بھی ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، ان کی جانب سے بھی جو وہ اپنا موقف آ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شبانہ بلوچ جو وہ ایک کرپٹ ترین خاتون ہے، جن کو دوبارہ جو وہ اس اسپتال کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جن کو ہٹا دیا گیا تھا، اور جن بچوں کی ڈگری جعلی قرار دی جا رہی ہے، ان کی ڈگری جعلی ہونے میں کسی بھی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی جو وہ سچائی موجود نہیں ہے۔ جبکہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے باہر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام طلبہ کی ڈگریز جو ہے جعلی ہیں، جس پہ کچھ روز قبل چاکیواڑہ تھانے کے اندر جو وہ مقدمہ بھی درج کرایا تھا۔ پولیس نے جو وہ اپنی طرف سے جو وہ تمام تر کارروائیوں کو جو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اب پولیس کی جانب سے جو وہ تمام تر موقف اور تمام تر تحقیقات کو جو وہ سامنے رکھ کے جو وہ پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ جی اچھا فرحان، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے کاغذات سارے جعلی تھے، یہ کتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک گروپ جو چاکیواڑہ تھانے کے باہر احتجاج کر رہا تھا، اب اس احتجاج کو روک دیا گیا یا احتجاج اب بھی جاری ہے؟
कराची के 18 कॉलेजेस में कायम मकाम प्रिंसिपल्स की तैनाती का मामला। डायरेक्टर कॉलेजेस कराची प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट की 1600 असामियाँ मौजूद हैं, जबकि नई भर्ती के लिए सेक्रेटरी कॉलेजेस और महकमा तालीम को ख़त इरसाल कर चुके हैं। नई भर्तियों के लिए महकमा तालीम इश्तिहार जारी करे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और अगर सरकारी कॉलेजेस के हवाले से बात की जाए तो कराची में शहर कायद में 154 सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, जिसमें ओवरऑल 18 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर कायम मुकाम प्रिंसिपल्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा गैर तदरीसी अमले की शॉर्टेज जो है कराची के बेशतर कॉलेजेस में हमें देखने को नजर आती है। तो इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं कराची रीजन के। इनसे आपकी बात कराते हैं। 154 कॉलेजेस में से हमारे 18 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें प्रिंसिपल्स इंचार्ज लगे हुए हैं। उनके लिए सेक्रेटरी साहब का हुक्म था कि हमें प्रपोजल्स बना कर दें। हमने प्रपोजल्स वो फॉरवर्ड कर दी हैं सेक्रेटरी साहब को, और मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्रेटरी साहब जल्द से जल्द उन 18 कॉलेजेस में परमानेंट प्रिंसिपल की तैनाती कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ कॉलेजेस हैं, किसी में अंग्रेजी का टीचर मुयस्सर नहीं है तो किसी में इस्लामियात का टीचर मुयस्सर नहीं है। ये तमाम तर मामला को किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि कराची में तकरीबन 2330 टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो इनकम्प्लीट है, मतलब वो खाली हैं, टीचर्स मौजूद ही नहीं है। इस वजह से ये मामला जो है वो हो रहा है। और जो पोस्टिंग्स हुई हुई हैं उसमें किसी किसी कॉलेज में एक सब्जेक्ट्स के ज़्यादा टीचर्स हैं और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब ने अब ये कहा है कि रेशनलाइजेशन में करूँगा और सब्जेक्ट वाइज मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे नहीं सब्जेक्ट वाइज हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सब्जेक्ट वाइज एसएनई को करें, ताकि कम से कम हर सब्जेक्ट का एक टीचर तो हर कॉलेज में मौजूद होना चाहिए। इश्तिहार जारी किया जाए मिनिस्ट्री की जानिब से, ताकि नई भर्तियां जो हैं वो कॉलेजेस में हों, चाहे वो असातिज़ा के हवाले से हो, चाहे वो गैर तदरीसी अमले के हवाले से हो। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी कब बात करेंगे बिजली की कीमतों ने हैदरी मार्केट की रौनकें मांद कर दी हैं। ताजर फी यूनिट बिजली 1 रुपये 74 पैसे महंगे होने से परेशान हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों की बात करें तो बिजली की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जबकि नेपरा की जानिब से बिजली मज़ीद 1 रुपये 74 पैसे महंगी की गई है, जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में है। 3 माह में इसकी वसूली की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अख्तर शाहिद, जो कि सदर हैं ऑल हैदरी ट्रेडर्स वर्किंग कमेटी के। इनसे जानते हैं, आम शहरी तो परेशान है बिजली की कीमतों की वजह से, लेकिन ये बताएं कि जो बिजली मज़ीद महंगी होती जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही कीमतें, तो उसका असर जो कारोबारी तबका है और बिलखुसूस जो ताजिर बरादरी है, जो दुकानदार हैं, उन पर किस तरीके से पड़ रहा है और किस तरह मुतासर है वो? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त अमलन कारोबार करना तकरीबन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और मुमकिन नहीं रहा। बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आस थी नई गवर्नमेंट से भी कि जनाब कोई रिलीफ देंगे, कुछ ऐसे इस्लाहाती पैकेज बनाएंगे, कुछ ऐसे कारोबारी पैकेज बनाएंगे कि कारोबार का पहिया जो है वो चले। लेकिन जिस तरीके से बिजली के बिल गाहे बगाहे मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ एफबीआर की जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो किसी भी तौर काबिल अमल नहीं है और दुकानदार इसमें सर्वाइव कर ही नहीं सकता। जिस दुकान का किराया 20-25-30 हज़ार रुपये है, उसका बिजली का बिल 40-45-50 हज़ार रुपये आ रहा है, उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से तमाम कारोबार जो है वो तबाही का शिकार हैं। इन हालात में जो लोग अपना दुकानों पे ख़ुद कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी कस्टमर्स का आना और कारोबार करना मुमकिन नहीं है। आए दिन मार्केट में जो दुकानें रेंट पर थी वो दुकानें खाली हो रही हैं और जो रेंट जिस दुकान का अगर 40,000 था तो उसका मालिक जो है उसको 30-35 हज़ार रुपये देने पे तैयार है, लेकिन उसका रेंटर नहीं मिल रहा, इसलिए कि कारोबार अमलन ख़त्म हो चुका है मुकम्मल तौर पर। जी बिल्कुल, अमलन कारोबार जो है वो नहीं रहा है, कारोबारी सरगर्मियाँ मफलूज होकर रह गई। उसकी बुनियादी वजह बिजली की होशरुबा कीमतें हैं। जो ताजिर बरादरी उनका मुतालबा है कि हुकूमत ना सिर्फ बिजली की कीमतों में कमी लाए बल्कि ऐसे इक़दामात करें जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ और मार्केटों की रौनकें जो हैं वो उरूज पर पहुँच सकें। अब आपको बताएं कि NICH अस्पताल मरीज बच्चों के तीमारदारों के लिए गैर महफूज हो गया। रोज़ाना चोरी के वाक़यात पर गए। कैंसर की शिकार 3 साल बच्ची ईमान फातिमा के वालिदैन का मोबाइल वार्ड से ही चोरी कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से, बताइएगा।
जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल NACH में, जहां पर आए रोज मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं और साथ साथ जो है मोबाइल भी चोरी हो रहे हैं। जो दाखिल मरीज हैं उनके वालिदैन और वालिदा से जो है मोबाइल चोरी होने के वाक़यात में इजाफा हो चुका है। और गुज़िश्ता शब भी इसी तरह कैंसर के शिकार ईमान फातिमा जो कि 3 साल बच्ची है, वो अपनी वालदा के साथ वहाँ मौजूद थी। वार्ड नंबर 3 में जो कि तीसरे फ्लोर पर मौजूद है, यहाँ पे भी इसी तरह मोबाइल चोरी कर लिया गया है। वहाँ पे जदीद कैमरे भी नस्ब हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद है, इसके बावजूद भी चोरी के वाक़यात रुक नहीं सके। तो इस हवाले से जो मरीज़ा बच्ची है 3 साल जो कि कैंसर का शिकार हैं, उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर मुस्तफ़ा, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। तनवीर, आप बताइए कि कितना परेशान है? एक तो बच्ची के इलाज के लिए, दूसरा मोबाइल भी चोरी हो गया, क्या कहेंगे? बच्ची के लिए इलाज के लिए बहुत परेशान है, और दूसरा ये है कि आज सुबह 7 बजे मोबाइल चोरी कर लिया गया है। और बच्ची का ये है कि हमें 8 महीने हो गए इलाज करवाते हुए, उसका इलाज भी अभी तक जो है ना वैसी है, कोई शिफा अभी तक नहीं हुई। दूसरा ये कि मोबाइल चोरी हुआ है, वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, सब लगा हुआ है, सिक्योरिटी भी हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे ईमान फातिमा बच्ची के वालिद जो कि कैंसर का शिकार है, 3 साल बच्ची है और तीसरे फ्लोर पर गुज़श्ता शब इनकी अहलिया और बच्ची की वालदा वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने मोबाइल वहाँ पे चार्जिंग पे लगाया और थोड़ी देर बाद देखा तो मोबाइल गायब था। डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल से बात हुई तो उनका कहना था कि इस हवाले से वो CCTV कैमरे की मदद से भी चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और जबकि इस जो सिक्योरिटी कंपनी इसके हवाले से भी मजीद तहकीकात करवाएंगे कि आया सिक्योरिटी बेहतर अंदाज में काम क्यों नहीं कर रही। जी, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ घंटे बाकी, शहर कायद में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। झंडा गली में सुबह से ही स्टॉल सज गए हैं, जहां बैजीज, नालन पाक, बच्चों के अमामे, झंडे, लाइटों की झालरें और दीगर सामान मौजूद हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों की शुरुआत माह मुक़द्दसा के आगाज़ से ही हो जाती हैं, जो आखिरी रोज़ तक जारी रहती हैं। शहर में आखिरी रोज़ भी तैयारियां उरूज पर हैं। झंडा गली में सुबह सवेरे से ही स्टॉल सज गए। स्टॉल मालकान ने बताया कि रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम सामान मौजूद है, जिन पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। मार्केट में 240 रुपये में मिलने वाली लाइट्स स्टॉल पर सिर्फ 150 रुपये में दस्तियाब हैं। सर, रबी अव्वल के हवाले से हमने काफ़ी डिस्काउंट रखा हुआ है, और ये हमारा 12 महीने का स्टॉल है। और यहाँ पे हमारे पास लेडीज़ के हेयर क्लिप, कोनियाँ, ज्वेलरीज में बालियाँ हो गई, कैचर्स हो गए और बैंड हो गए, बच्चों की माथा पट्टियाँ हो गई, बच्चों की ताज है, हेयर क्लिप हैं, झंडियाँ हमारे पास, लेटेस्ट फानूस हैं, और ये ताजदार ख़त्म नबूत के बेजिस हैं हमारे पास, नालन पाक हैं, और बहुत ही कम डिस्काउंट में हम लोग दे रहे हैं। सर, लाइटें भी हैं हमारे पास, लाइटें हम लोग ये चला रहे हैं, पूरी मार्केट में ये 240 चल रही है, हम 150 रुपये मीटर चला रहे हैं। स्टॉल्स पर मुख्तलिफ अक़साम की बैजेस, नालन पाक, बच्चों के इमामे, छोटे बड़े झंडे, लाइटों की झालरें, बच्चियों की पोनियां और हेयर बैंड्स, माथे की पट्टियां व दीगर सामान मौजूद है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम जारी हैं। कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची की जानिब से MA जिना रोड पर कैमरों का जाल बिछा दिया गया है। हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर सोल्जर बाजार थाने में मौजूद हैं और इनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के हवाले से जहां पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं पर कम्युनिटी पुलिसिंग का जो इदारा है वो भी अपना काम कर रहा है। इस वक्त जो जुलूस का रूट है MA जिना रोड, वो साउथ जोन में भी लगता है और इसके साथ साथ ईस्ट जोन में भी लगता है। तो यहाँ पर एक कैमरों का जाल बिछा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कम्युनिटी पुलिसिंग साउथ के चीफ खुर्रम होनानी। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं और टोटल कितने कैमरे इस रूट पर लगे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब, बताइए कि कितने कैमरे तकरीबन इस रूट पर लगे हुए, क्योंकि देखिए हमने देखा कि मुहर्रमुल हराम में भी बड़े एक्टिव रहे मामलात और मॉनिटरिंग भी होती रही है, बहुत बेहतरी आई सूरत हाल में। अब ज़ाहिर सी बात है 12 रबीउल अव्वल का जुलूस इस हवाले से बड़ा होता है कि शहर के तकरीबन तमाम इलाकों से ही लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो आप लोगों का कौन सा रूट है और ये अपना कौन कौन सा एरिया है और कितने कैमरे काम कर रहे हैं? अच्छा जी, हमारा इस वक्त सोल्यो बाज़ार के अंदर 100 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, जिसके अंदर PTZ कैमरे भी हमने लगाए हैं। अच्छा, ये कैमरे पूरे जुलूस के रूट पे, जो इससे पहले भी हमारे मुहर्रम का टाइम भी गुजरा, फिर 40 चहलम गुजरा, फिर इसके बाद अब रबीउल अव्वल का टाइम है, तो ये हमारे कैमरे सारे हमने एक्टिव करके रखे हुए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल हमारे कैमरे एक्टिव रहते हैं। अच्छा, ये कैमरे जो है पूरे जुलूस की निगरानी करेंगे ईस्ट के अंदर। अभी हम सोल्यो बाज़ार में हैं और ईस्ट के अंदर हमारे 100 से ज़्यादा कैमरे हैं जिनसे जुलूस की निगरानी की जाएगी। साउथ के अंदर हमारे इस वक्त 130 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं
जो साउथ के अंदर वहाँ बैठ के कंट्रोल रूम में वहाँ की निगरानी की जाएगी। खुर्रम मुनानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ईस्ट के इलाके में 100 से ज़ायद कैमरे इस वक्त एक्टिव हैं और उनको मॉनिटर किया जा रहा है। छोटे कैमरे लोगों ने अपने तौर पर लगाए हुए हैं, उनको भी लिंक किया गया है KPO में, तो उनको भी वहाँ मॉनिटर किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी। सिंध सॉलिड वेस्ट गेंसो कंपनी ने लियाकताबाद टाउन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। जुलूस महाफिल के रास्तों पर सड़कों की धुलाई जारी। मेयर कराची और MD सॉलिड वेस्ट की हिदायत पर खुशबू स्प्रे के बाउजर्स तैयार कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। सिंध सॉलिड वेस्ट गिंजो कंपनी लियाकताबाद टाउन में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से तैयारियों में मसरूफ। टाउन में जुलूस और महाफिल के तमाम रास्तों पर सड़कों की धुलाई का काम शुरू। गिंजो कंपनी के मैनेजर ऑपरेशन नासिब अली कहते हैं मेयर कराची और DMC सॉलिड वेस्ट की हिदायत पर खुशबू के स्प्रे के ब्राउजर्स तैयार कर लिए गए हैं। ये जो त्यौहार है ना, ये हमारा मजहबी त्यौहार है और ये हमारा फरीज़ा भी है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हमारे मेयर कराची बैरिस्टर मुस्तफा वहाब साहब और MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो है ये काम सारा किया जा रहा है। और आपको पता है शुरू से लियाकताबाद जो है वो आपको पता है कि पुरजोश तरीके से जो है वो रबीउल अव्वल का जो है वो जो दिन है वो बहुत एहतमाम से और एहतराम से मनाया जाता है। लियाकताबाद टाउन में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कचरा चुनने वालों का सामान जब्त कर लिया गया है। अमले का कहना था कि 12 रबी अव्वल को 3 शिफ्टों में 24 घंटे अमला तैनात रहेगा। 12 रबी अव्वल के हवाले से जो भी जुलूस होंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर जो है वो अपनी 350 लेबर जो है यहाँ पर मौजूद है हमारी, जो हम 3 शिफ्टों के अंदर चलाएंगे, ठीक है ना। तो जुलूस के हवाले से हमने ये इकदाम किए हैं कि जो भी कचरा जनरेट होगा हम उसको फौरन जो है फौरी तौर पर जो है उसको अटेंड करेंगे। लियाकताबाद टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दुरूद व सलाम की दर्जनों महफिल सजाई जाती हैं, जहां सफाई सुथराई के लिए 300 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से निश्तर पार्क में इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। रबीउल अव्वल कंटीजेंसी प्लान के तहत 100 सैनिटरी वर्कर्स 3 शिफ्टों में तैनात किए गए हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर आमिर अब्बास कहते हैं कि मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर बाउजर्स के जरिए काम किया जा रहा है। निश्तर पार्क से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 450 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल नश्तर पार्क में, जो कि सियासी और मजहबी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल कराची का पार्क समझा जाता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस जो है वो इसी पार्क में पहुँचता है और यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस होती है, मुनक्किद की जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सफाई सुथराई के इंतजामात जो हैं वो ज़िम्मेदारी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, जिसकी जानिब से यहाँ पर जो है खिदमात की अदायगी का सिलसिला जारी है। आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से इनका ताल्लुक है। फरमाइएगा, यहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से रबी अव्वल के हवाले से क्या खास इकदाम किए गए? रिजवान भाई, जैसा आपको मालूम है कि रबी अव्वल से पहले ही हमने अपने काम शुरू कर दिए थे। मेयर साहब और अपना MD साहब की हिदायत पे भरपूर काम जारी सारी हैं, दिन रात काम हो रहा है, 18 घंटे में वर्किंग कर रहे हैं 3-4 शिफ्टों के अंदर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि चूँकि कल जो है वो 12 रबी अव्वल है और यहाँ पे आवाम का हुजूम जो है उमड़ कर आएगा, तो जाहिर सी बात है कि कचरे की डेवलपमेंट भी होती है, उसके बर वक्त अजाले के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? उसके लिए हमने मैनुअल स्वीपिंग का इंतजाम किया है। हमारे बीन्स होते हैं, हमारे शॉपर्स हैं, उसमें लेबर जो होगी वहाँ मौजूद होगी, जो लोग अपने चीज़ें फेंक रहे होंगे, रेपर्स वगैरह, वो उसको पिक कर रहे होंगे। अच्छा, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद टाउन में ख़ास तौर पे ये देखा कि वहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले की जानिब से जो अगवान माफिया है, कचरा माफिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनके जो बोरे वगैरह थे वो जब्त कर लिए गए, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से भी खतरनाक हो सकता है। आपकी जानिब से ऐसे कोई इकदाम किए गए? जी बिल्कुल, मैं आपको इतना दे दूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाहिद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है जहाँ 42 FIRs हुई हैं अगवानी के खिलाफ, उनके माल भी जब्त हुए हैं और उन्हें हम कोर्ट में हेयरिंग भी हमारी जारी है उनके साथ। अच्छा, ये जो इंतजामात आपने किए हैं इसमें रबी अव्वल के हवाले से, 12 रबी अव्वल के हवाले से कितनी शिफ्टी में और यहाँ नश्तर पार्क में डिप्लॉयमेंट जो है आपके सैनिटरी वर्कर्स की कितनी होगी? नश्तर पार्क में हमारे 100 के करीब लोग यहाँ डिप्लॉयमेंट है, उसका बैकलाइन स्वीपिंग के जरिए, वाटर बाइजर के जरिए काम जारी हो सारी एतराफ़ के अंदर। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि नश्तर पार्क में सफाई सुथराई के लिए जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अपना जो तैयार करदा कंटीजेंसी प्लान है उसके तहत काम का आगाज़ कर रखा है और यहाँ पे सफाई सुथराई 12 रबी अव्वल के दिन जो
जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे अमला तैनात रहेगा और इतराफ़ के इलाकों में भी सफाई सुथराई का निज़ाम जारी है। जी, यहाँ आपको बताएं कि 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंध सेक्रेटेरिएट में रैली का इनेकाद। नॉन गजेटेड मुलाजमीन की तंजीम सनवा की जानिब से ये रैली निकाली गई है। अहम खबर आपको दें कि 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंध सेक्रेटेरिएट में रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नूरियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सेक्रेटेरिएट के नॉन गजेटेड मुलाजमिन की तंजीम सनवा के सदर नजर हुसैन जलालन की क़यादत में जश्न आमद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रैली का जो है आगाज किया गया। ये रैली न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट से रैली का आगाज किया गया मेन गेट से, जिसमें बड़ी तादाद में छोटे ग्रेड के मुलाजमिन ने शिरकत की। मुलाजमिन के हाथों में पहले गार्ड भी थामे हुए थे। रैली ओल्ड केडी बिल्डिंग में वाकई कायम जो सिनेमा का ऑफिस है वहाँ पर उस मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। जो रैली वहाँ पर भी इख्तिताम पजीर हो गई। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो आपका। पाकिस्तान रेलवेज़ की अगस्त 2024 में माल बर्दारी के ऑपरेशंस में शानदार कारकर्दगी। माह अगस्त में ज़्यादा अहदाफ हासिल किए और नुमाया तरक्की दिखाई है। अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान रेलवेज़ की अगस्त 2024 में माल बर्दारी के ऑपरेशंस में शानदार कारकर्दगी देखने में आई है और माह अगस्त में ज़्यादा अहदाफ हासिल की और नुमाया तरक्की दिखाई है। पाकिस्तान रेलवेज़ की अगस्त 2024 में माल बर्दारी के ऑपरेशंस में शानदार कारकर्दगी देखने में आई है। माह अगस्त में ज़्यादा अहदाफ हासिल भी किए हैं और नुमाया तरक्की दिखाई है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान रेलवेज़ की अगस्त 2024 में माल बर्दारी के ऑपरेशंस में शानदार कारकर्दगी देखने को मिली है। माह अगस्त में ज़्यादा अहदाफ हासिल किए गए हैं जबकि नुमाया तरक्की भी दिखाई गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अक्सा शाहिद से, हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा अक्सा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की अगस्त 2024 में माल बर्दार गाड़ी ऑपरेशन में जो शानदार कारकर्दगी सामने आई है। माह अगस्त में ज्यादा हदफ हासिल किए गए और नुमाया कारकर्दगी जो दिखाई दी, जिसमें जो है वो बजट से ज्यादा जो है वो काम जो है वो किया गया, जैसे कि 4,60,109 टन कार्गो मुख्तलिफ बलाई इलाकों के मकामात तक 15,393 रेलवे विघन जो है वो उसके जरिए जो वो सामान जो मुंतकिल किया गया है, जिससे 2,393 मिलियन रुपए की जो वो आमदनी कौमी खजाने में जो वो जमा हुई है। और ये कामयाबी जो तवक्कात जो है वो बढ़कर सामने आई है। कामयाबी पाकिस्तान रेलवे की माल बर्दार ऑपरेशन को बेहतर बनाने का अज़म जो है वो रखती है। पाकिस्तान रेलवे का ये भी मौक़िफ़ जो वो सामने आया है कि हासिल होने वाली आमदनी जो है वो 643 मिलियन रुपए से ज़ायद हुई है, जो कि बजट के जो है वो 37% से ज़्यादा है। माली साल 2024 और 25 के इब्तदाई 2 महीनों में जो है वो रेलवे की कारकर्दगी जो वो कराची के जरिए जो वो ज़्यादा जो है वो नुमाया रही है। माल बर्दार का हदफ जो है वो 2,840 मिलियन रुपए था, जबकि लेकिन कराची डिवीजन ने जो है वो 4,298 मिलियन रुपए की जो है वो आमदनी हासिल की, जो कि हदफ से जो है वो 1,460 मिलियन रुपए के करीब जो है वो ज्यादा है। इसका जो फीसद अगर हम लगा सकते हैं 91% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ये इस वक्त जो है वो साल 2025 और 24 की जो है वो 2 महीने की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जो बजट से भी जो है वो ज्यादा की है और तवक्कात से जो है वो ज्यादा कारकर्दगी जो है वो सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद।